आदाब। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन कार्यक्रम उद्घाटित। जिला कन्नड़ साहित्य परिषद सम्मेलन का उद्घाटन रंग मंदिर में किया गया। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के गांवों में महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य योजना का किया विरोध। राष्ट्रीय दल दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस के आधार को नष्ट नहीं कर सकते, एसडी कुमारस्वामी। बीजेपी विधायक कोटियन का मुस्लिमों पर स्टैंड को लेकर पार्टी की आलोचना करने का वीडियो वायरल। राहुल गांधी का केंद्र पर एक और हमला, कहा एलआरआ को कौन कंट्रोल करता है। नीतीश कुमार में दम है तो बोलकर दिखा दें कि लालू परिवार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, प्रशांत किशोर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। आज जिला प्रशासन जिला पंचायत परिसर स्थित कर्नाटक पशु चिकित्सा पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आयोजित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। ये सम्मेलन राज्य भर में सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, बीदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल माणिकोप्पा, पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान, विधायक गुंडप्पा खाशिमपुर, शरणु सलगार, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत सीईओ शिल्पा एम, एसपी चन्ना बसवन्ना लंगोटी सहित अन्य अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। नमस्कार सर, मेरे बारे में क्या है, कांग्रेस पार्टी वाला बोलता है 2000 देते हैं महिलाओं को और विद्युत फ्री देते हैं, राशन 10 केजी देते हैं बोल रहे। ये क्या बोलता है? राजकारणी अभी मई में इलेक्शन है, इलेक्शन तक बोलेगा सब फ्री करते हैं, इलेक्शन होने के बाद हमारे को देखने भी नहीं आते। कैसा है हमारा, उसको दान नहीं दे रहे हम। हमारा पूरा ये वोटिंग है ना, हमारा वो ये क्या है, मेरा हक है। हर एक आदमी का प्रजाप्रभुत्व का हक है। ये भारत देश में प्रजाप्रभुತ್ವ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದೇ ಹಕ್ಕು। ನಮ್ಮದು ಹಕ್ಕು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು। ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮದು ಏನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಆಗಲಿ ಅವರೇ ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂರಾ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ। सर अभी वो लोग तो बोल रहे हैं कि सभी केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं जो लोगों तक पहुंच रही है, आपको क्या लगता है? मेरे तरफ से कोई भी अभी ये केंद्र सरकार बोलते हैं ನಾವು ಧೂಳಪ್ಪ ಬೋತ್ಗಿ ಅಮೀರಾಬಾದ್ ವಾಡಿಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲಾಗ್ಯದ। ಈ ಮಿಡಲ್ ಜನರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರಾ ರೈತರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸಲ್ರು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸಲ್ರು। ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿರ್ತದ। ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಲಿನವ್ರು ಇವರು ಮೋದಿಯವ್ರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳತ್ತಾರ ಆ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ತದೆ। ಈಗ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅವರು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 6000 ರೂಪಾಯಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4000, ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ರೈತರಿಗೂ ಬರ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ। ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಥರ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಮತ್ತು ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನ ನಾವು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದು। ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆನೇ ಈಗ ಸವಲತ್ತು ಅದ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ ಸರ್ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಅದ, ರೈತರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಹೇಳತ್ತಾರ ಅವ್ರು। ಈಗ ಗರೀಬ್ ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಅದ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಪಾನಿ ಎಲ್ಲ ಪಿರೇ ಮಾಡತ್ತಾರ। 2000 ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು 6000 7000 ಓಡಿಸ್ಲತ್ತಾರ। ಈಗ ಗರೀಬ್ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದ ಬಂದರು ಕುರಿ ಕೂಟಾಗದಂಗೆ ಕೂಡಾಕ್ದವ್ರು ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇವು ನಾವು। ಈಗ ಬೆಟ್ಟ ಬೇಗನ ದುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತದೆ। ಈಗ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಬೇಗನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್। ಕೋಲಾರ क्या बोल कर रहा है आपको? ನಾವು
बीदर शहर के रंग मंदिर में आज जिला कन्नड़ साहित्य परिषद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, मंत्री प्रभु चौहान, डॉक्टर महेश जोशी, प्रोफेसर सिद्धरामप्पा मासीमाड़े, सुरेश चंद्रशेट्टी, नेता सूर्यकांत नागवरपल्ली सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಹೆಸರು ಈ ರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದರ್ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾವೇ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅವೇ ಮಾಡಿದಾರ, ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೈಲು ನಾಟಕದ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಆವಾಗ CT ರವಿಜಿಯವರು ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ಕೋಟಿ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಇದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ, ಆ ಅಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಉಳಿಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಾವು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದೀರಿ, ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಾನೇನು ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸರಿ ಒಂದು 10,000 ಹೋಟೆಲ್ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದೊಂದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮಾಸಿಮಾಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಅದು ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂತಸ ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बसवा कल्याण में कांग्रेस का गारंटी कार्ड वितरण कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस समिति के मुख्य सचिव एवं बसवा कल्याण तालुके के प्रभारी मोहम्मद अब्दुल समी और कांग्रेस के आकांक्षी शहर में और ग्रामों में घर घर जाकर कांग्रेस गारंटी कार्ड का वितरण कर लोगों को कांग्रेस की योजनाओं के बारे में बताया और कांग्रेस को मजबूत करने का आग्रह किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब लेते हैं एक ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य जिलों के। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की प्रस्तावित स्वास्थ्य योजना को कर्नाटक राज्य में पड़ने वाले सभी विवादित गांवों में लागू करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने न केवल केंद्र सरकार से शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, बल्कि इस मुद्दे पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं देने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का इस्तीफा भी मांगा है। शिंदे सरकार ने हाल ही में अपने प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को विवादित गांवों में लागू करने की घोषणा की है। कर्नाटक ने सूचित किया है कि महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम और स्वीकृत है, लेकिन पड़ोसी राज्य द्वारा कर्नाटक के गांवों में एक सरकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की घोषणा के बाद कड़ी प्रतिक्रिया हुई। शिंदे सरकार की कड़ी निंदा करते हुए सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि जब एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य के मामलों में दखल दे रही है तो केंद्र सरकार चुप कैसे बैठ सकती। उन्होंने अपना विरोध दर्ज नहीं कराने के लिए कर्नाटक की भाजपा सरकार की आलोचना की। उगर दिख रहे कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या केंद्र और राज्य की सरकारें मर चुकी हैं।
जेडीएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां दक्षिण कर्नाटक में उनकी पार्टी के आधार को नष्ट नहीं कर सकती हैं। कुमारस्वामी ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मांड्या, मैसूरू और हासन को निशाना बनाया है, जहां जनता दल एस ने लगातार चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों का जेडीएस में विश्वास है और विपक्ष उन्हें झूठे वादों से लुभा नहीं सकता है। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम के इस बयान पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कि जेडीएस विधायक गुब्बी श्रीनिवास, जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, पार्टी में वापस आ सकते हैं। उन्होंने कहा, पार्टी में मेरा फैसला अंतिम है और नेताओं को जल्दबाजी में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी कार्यकर्ता भ्रमित होंगे। हम गुब्बी से एक नागराज को मैदान में उतार रहे हैं। हासन में पार्टी के टिकट को लेकर असमंजस पर उन्होंने दोहराया कि जेडीएस वहां से एक पार्टी कार्यकर्ता को मैदान में उतारेगी और अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा लेंगे। एक वायरल वीडियो में भाजपा विधायक उमानाथ कोटियन ने मुस्लिमों पर पार्टी के कथित रुख पर आपत्ति जताई है। कुछ दिनों पहले मंगलुरु के पास किन्नी गोली गांव में अल्पसंख्यकों की एक सभा में बोलते हुए मुदबिदरी से पहली बार विधायक बने कोटियन ने कहा, हमारे भाजपा नेता कहते हैं कि मुस्लिम और ईसाई पार्टी को वोट नहीं देंगे और इसलिए उन्हें काम नहीं करना चाहिए। इस बारे में मेरे सिवा कोई और बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं सीधा साधा हूं। हमारी पार्टी के लोग अहंकारी हैं, लेकिन मैं इस धारणा के खिलाफ काम कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने बहुत सारी मस्जिदों, मदरसों और चर्चों को विकास के लिए धन प्राप्त करने में मदद की है। हाल ही में मैंने सीएम से मस्जिदों और चर्चों के लिए 5 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया और सीएम ने 2.5 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया। लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए जो धर्म की परवाह किए बिना काम करता है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई सांप्रदायिक हिंसा या अभद्र भाषा की घटनाएं नहीं हुई हैं। क्या आपने ऐसा कुछ सुना है कि एक मुसलमान या ईसाई को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? मैं कोई भेदभाव नहीं करता। कुछ चाहिए तो मेरे पास आओ। मैं आपसे वोट देने के लिए नहीं कहता, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है कि जो काम करें उन्हें वोट दें। पार्टी मत देखो, मैंने आपके लिए काम किया है, इसलिए मैं इसके लिए वेतन मांग रहा हूं, जो मेरा अधिकार है। जहां कई लोगों ने भाजपा विधायक की सराहना की है, वहीं कुछ हिंदुत्व संगठनों ने उन्हें मुसलमानों को खुश करने के लिए नारा दिया है। संपर्क करने पर उमानाथ कोटियन ने कहा, किसी की जरूरत के हिसाब से वीडियो को काट कर चिपकाया गया था। आपको पूरा वीडियो सुनना होगा, तब तुम समझोगे। मेरा मतलब वो नहीं था जो वायरल वीडियो में दिखाया गया है। हावेरी जिले के रत्तीहल्ली कस्बे में मंगलवार को उपद्रवियों के पथराव के बाद तनाव व्याप्त हो गया। घटना फोर्ट रोड पर उस समय हुई जब एक जुलूस निकाला जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि परेशानी तब शुरू हुई जब जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने एक पूजा स्थल और एक उर्दू स्कूल की इमारत पर पथराव शुरू कर दिया। सड़क के किनारे खड़ी एक कार, कुछ ऑटो रिक्शा और कुछ दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हावेरी पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में अतिरिक्त बलों को बुलाया। जुलूस निकालने वाले संगठनों से जुड़े 15 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगले कुछ दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। पुलिस ने कहा कि इससे पहले 9 मार्च को रत्तीहल्ली में संगोली रायन्ना के सम्मान में एक जुलूस निकाला गया था। अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर फोर्ट रोड पर जुलूस को रोक दिया था। इसके बाद मंगलवार को काफी संख्या में सदस्य जुटे और दूसरा जुलूस निकाला गया। यहीं पर फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अब देखते हैं देश के अन्य राज्यों के समाचार। राहुल ब्रिटेन में अपने बयान और सरकार की ओर से माफी की मांग को लेकर उठे हंगामे के बीच राहुल गांधी ने बुधवार को एलारा नाम की एक विदेशी इकाई पर सवाल उठाकर अडानी समूह और सरकार पर एक और हमला बोला है। गांधी ने अपनी विदेश यात्रा से दिल्ली लौटने के बाद आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप और एलारा को मिसाइल और रडार अपग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, भारत की मिसाइल और रडार अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट अडानी के स्वामित्व वाली एक कंपनी और एलारा नामक एक संदिग्ध विदेशी संस्था को दिया गया है। एलारा को कौन नियंत्रित कर रहा है? अज्ञात विदेशी संस्थाओं को रणनीतिक रक्षा उपकरणों का नियंत्रण देकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों किया जा रहा है? बता दें कि इन दिनों जहां राहुल गांधी लंदन में अपने दिए बयानों को लेकर विवादों में हैं, वहीं अडानी विवाद पर विपक्ष एकजुट है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाले समूह से दूर रह रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ब्रिटेन के भाषण में राहुल गांधी की ओर से किसी भी तरह की माफी से इनकार किया है। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा और केवल लोकतंत्र के बारे में बात, जबकि प्रधानमंत्री ने विदेशों में कई जगहों पर बात की और देश का अपमान किया। राहुल गांधी के बयान पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि पार्टी इस मुद्दे पर झुकने वाली नहीं है और इस मुद्दे पर आक्रामक होगी और हिंडनबर्ग अडानी विवाद में जेपीसी की मांग करेगी। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान सारण जिले के मांझी प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार मामले में हो रही कार्रवाई के मुद्दे पर नीतीश कुमार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुश हैं या नहीं, ये बात नीतीश कुमार से ज्यादा कौन जान सकता है। नीतीश न तो पक्ष में बोल रहे हैं और न ही विपक्ष में। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, लालू यादव और उनके परिवार पर जो छापा पड़ा है उस पर नीतीश कुमार न तो पक्ष में बोल रहे हैं और न ही विपक्ष में। नीतीश कुमार को साफ तौर पर कहना चाहिए कि लालू यादव हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार के सारे आरोप गलत हैं। अगर वो इस बात को नहीं कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मालूम है कि 2025 में उनकी सरकार नहीं बनेगी और न ही वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार को ऐसी सरकार मिले जो उनसे भी खराब काम करे, जिससे लोग ये कह सकें कि नीतीश कुमार की सरकार कितनी भी खराब हो लेकिन इससे तो अच्छी ही थी। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले एक वर्ष से शराब को लेकर जितना हो हल्ला मचा है उतना शायद ही किसी और विषय पर मचा हो। दिल्ली एक हर चौक चौराहे पर शराब को लेकर कोई न कोई चर्चा कर ही रहा होता है। शराब के दलदल में केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी बुरी तरह घिरी हुई है। मुख्यमंत्री के सबसे खास और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया शराब को लेकर ही जेल में बंद है। वहीं अब इसी मामले में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस नीति के तहत अब अगले 6 महीने के दौरान दिल्ली में 5 दिन ड्राई डे मतलब शराब के ठेके बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार अब सितंबर तक दिल्ली में पुरानी शराब नीति ही लागू रहेगी। इस दौरान महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिए गए बयान पर बीजेपी के सदस्यों की नारेबाजी और अडानी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने बुधवार को लोकसभा में भारी हंगामा किया। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर विपक्षी दलों के नेता संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च करने वाले थे, लेकिन विजय चौक पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद वे संसद वापस चले गए। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर जेपीसी जांच की अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। कुछ विपक्षी सदस्यों के हाथों में तख्तियां भी थीं। उधर सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर विदेश में राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर उनसे माफी की मांग करने लगे।
अब देखते हैं समाचार विदेश के। भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत में पेश होने में नाकाम रहे पाकिस्तान के उपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश के तहत लाहौर के जमान पार्क स्थित खान के आवास के बाहर पुलिस कर्मियों के साथ अब पंजाब रेंजर्स की टुकड़ी भी शामिल हो गई है। अपने नेता को गिरफ्तार करने से रोकने के दौरान खान के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद लाहौर के जमान पार्क इलाके में किसी युद्ध के मैदान जैसा मंजर है, जहां सड़कों पर आंसू गैस के गोले, जले हुए टायर और वाहन का मलबा बिखरा पड़ा नजर आ रहा है। इस झड़प में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए। इस हाई प्रोफाइल इलाके में स्थित अपने घर में बुधवार को इमरान खान नजरबंद रहे। वहीं सरकार ने पुलिसकर्मियों की मदद के लिए रेंजर्स को भेजा है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने आई पुलिस की टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के बाद उन्हें पकड़ने के लिए मुशक्कत करती दिखी। पीटीआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच मंगलवार को लाहौर के जमान पार्क इलाके में झड़प हुई। तोशाखाना मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस बख्तरबंद वाहनों के साथ पीटीआई चीफ इमरान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों में हुए ब्लास्ट के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की खबरों को मंगलवार को खारिज कर दिया। उन्होंने एक बार फिर अमेरिका पर उंगली उठाई और उसे गैस पाइपलाइन के हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट और जर्मन मीडिया द्वारा पिछले हफ्ते अज्ञात अमेरिकी तथा अन्य अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित खबरों पर यह बयान दिया। इन खबरों में दावा किया गया था कि इस बात के सबूत हैं कि यूक्रेन या कम से कम यूक्रेन के लोग ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार थे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। RRR अभिनेता जूनियर NTR ने हाल ही में हॉलीवुड स्टार ब्रैड पीट के काम को लेकर खुलकर बात की। तेलुगु स्टार ने कहा कि किसी दिन पीट के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। अब समाचार खेल जगत के। ICC रैंकिंग, विराट कोहली का बड़ा कारनामा, शतक लगाने के बाद रैंकिंग में भारी बदलाव। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। अच्छी ओपनिंग के बावजूद लाल निशान के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी को लगा भयंकर घाटा। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन कार्यक्रम उद्घाटित। जिला कन्नड़ साहित्य परिषद सम्मेलन का उद्घाटन रंग मंदिर में किया गया। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के गांवों में महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य योजना का किया विरोध। राष्ट्रीय दल दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस के आधार को नष्ट नहीं कर सकते, SD कुमारस्वामी। बीजेपी विधायक कोटियन का मुस्लिमों पर स्टैंड को लेकर पार्टी की आलोचना करने का वीडियो वायरल। राहुल गांधी का केंद्र पर एक और हमला, कहा एलारा को कौन कंट्रोल करता है। नीतीश कुमार में दम है तो बोलकर दिखा दें कि लालू परिवार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। प्रशांत किशोर। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। रात 10 बजे देखें केपी कर्नाटक न्यूज बुलेटिन। धन्यवाद।